Good afternoon, students. So, in the last class, we had started with the new chapter Travel and Fuel, in which we discussed in detail about travel and fuel, that how are travel and fuel related to each other, and then we even saw examples of fossil fuels and discussed what are fossil fuels. So, today we are going to see one more example of fossil fuel, which is a natural gas. Now, natural gas क्या होती है? Natural gas is found along with petroleum. It can be used as LPG, that is liquefied petroleum gas, or CNG, that is compressed natural gas. So students, I had told you this in the last class as well. CNG का full form आप सबको याद रखना है, which is compressed natural gas. Similarly, आज हम LPG के बारे में भी पढ़ेंगे, which is what? Liquefied petroleum gas. So CNG and LPG है दो examples of natural gas. Like natural gas can be used as LPG and CNG. Okay. नाउ LPG होता क्या है? LPG इज़ यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज इन व्हीकल्स. अब सबने ये गैस सिलेंडर्स अपने किचन में देखी होगी, राइट? अब इस गैस सिलेंडर के अंदर क्या है? इट हैज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज़ यूज फॉर कुकिंग. इसके बिना आप ऑब्वियसली बात अपनी गैस नहीं चला पाओगे. एंड ऑल्सो it is used in vehicles. Similarly, CNG is commonly used in vehicles as it causes less pollution. We had discussed this in the last class as well कि CNG बहुत ही environment friendly gas है. And I even told you that CNG is stored in a cylinder like this at the back of the vehicle. ऐसे जो हमारे पीछे की डिक्की होती है, जिसको हम डिक्की कहते हैं, वहाँ पे स्टोर किया जाता है. एंड आई इवन गेव विद एग्जाम्पल ऑफ ओला एंड ऊबर. ये सब CNG रन व्हीकल्स है. दीज आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली, दे कॉज लेस पोल्यूशन एंड दे आर वेरी रीजनेबल. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू gases which is LPG and CNG. Now next is प्रॉब्लम्स विद फॉसिल फ्यूल्स. अब हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, राइट? एंड वी इवन सॉ वेयर आर द वेरियस एग्जाम्पल्स यूज्ड. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है. जब हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं तो इससे क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. All living things, human beings, plants and animals need fresh air for breathing. Obviously, we need fresh air for breathing, right? And breathing is a very vital component of our living. However, with increasing number of vehicles on the road, air pollution is becoming a serious problem. Now students, we all know with time modern ज़माना आ गया है. The amount of vehicles on the roads are increasing. Traffic इतना ज़्यादा हो चुका है, especially if you go in metropolitan cities like Delhi and Bombay. तो obviously what will this result in? This will result in air pollution, and air pollution is becoming a serious problem. Okay, अब you all must be wondering कि air pollution क्या होती है. The declining quality of air due to mixture of harmful substances in it is called air pollution. मतलब कि जितनी जितनी एयर की क्वालिटी डिक्लाइन होती जाएगी उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होएगा और उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी ब्रीदिंग में, विच इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम as we all living things need fresh air for breathing. तो जो एयर की क्वालिटी है, जो अमाउंट ऑफ gases फैक्ट्रीज से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, these are polluting the air. So this is one example of fossil fuel कि एक प्रॉब्लम क्या है? एयर पोल्यूशन. फॉसिल फ्यूल causes air pollution. Next is the burning of fossil fuels releases carbon monoxide gas which pollutes the air. अब students, ये एक और पॉइंट है प्रॉब्लम्स में जो आता है रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल्स की यूसेज में कि बर्निंग ऑफ मतलब कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, वी बर्न इट, इट रिलीजेस अ गैस विच इज़ कॉल्ड कार्बन मोनोक्साइड. अब व्हाट इज़ कार्बन मोनोक्साइड? कार्बन मोनोक्साइड इज़ बेसिकली अ कलरलेस, मतलब इसकी कोई कलर नहीं होती है, एंड ओडरलेस गैस. ओडरलेस मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं है, ठीक है. And it can result in serious brain damage and even death. So you all can now imagine कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी हार्मफुल गैस है जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज़ की जाती है. एंड जितनी हार्मफुल गैस होगी उतना ही ज़्यादा हमारा एयर पोल्यूट होएगा.
अब सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से ये गैस रिलीज़ होती है. फॉर एग्जांपल जो हमारी गैस अप्लायंसेस होगी, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज से, फॉरेस्ट फायर, व्हीकल्स से, बायोमास बर्निंग से, पावर जनरेशन से. सो दीज आर ऑल सोर्सेज जहाँ से एक हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ की जाती है, विच कॉजेज वॉट, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन. सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमारा एयर पोल्यूशन था, राइट, कि एयर की क्वालिटी डिक्रीज़ होती जा रही है. सेकंड है, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो उससे क्या रिलीज़ होएगा, उससे रिलीज़ होएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, विच इज़ अगेन हार्मफुल फॉर द environment. Now next point is the use of coal in factories adds on to air pollution. अब coal is what? Coal is again an example of fossil fuel, and this fossil fuel also adds to air pollution. Okay, the situation worsens in winters. मतलब winters में situation और worse हो जाती है, because smoke and fog combine to form smog, a situation that makes breathing very difficult. अब ठंड के टाइम में स्मोक एंड जो ये फॉग होती है जो ठंड के टाइम में ब्लर कर देती है आगे से, मतलब हमारी जो विजन होती है उसको ब्लर कर देती है, क्योंकि इतनी ठंड होती है तो फॉग आ जाती है, राइट. उससे क्या फॉर्म होता है, स्मॉग, एंड स्मॉग इज़ अगेन अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन. एज यू कैन सी दीज टू पिक्चर्स, ये कितना क्लियर है. बट इन अ सिचुएशन वे स्मॉग एंड फॉग कंबाइन टू फॉर्म स्मॉग, this is the way the air quality looks like. You can see in this picture कि कितना difference है जब smog form किया जाता है. And moreover this results in what? This results in breathing. Okay, breathing को बहुत difficult process बना देती है for human beings. Another problem with fossil fuel is petrol has to be taken out from oil wells. ये ऐसे oil wells होते हैं जैसे petrol has to be taken out and refined before use. मतलब पेट्रोल को यूज़ करने से पहले उसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है. The entire process is very expensive. मतलब ये जो प्रोसेस है of taking out petrol from oil wells and refining it, it is very expensive. Moreover, most of the countries do not produce oil. They have to import it from other places paying a heavy price. अब ऐसा import export भी चलता है, ठीक है, because not all countries are producing oil. Now this involves a very heavy price. Fossil fuels are expensive and should be used only when necessary. So this is the fourth point, students, कि fossil fuels are very expensive and they should be used only when it is necessary, it is important. Fossil fuels are non-renewable sources of energy. If depleted once, it will be impossible to replenish them again. Now this is a very important point, students, कि fossil fuel क्या है? These are non-renewable sources of energy. तो जितना भी oil हो गया, coal हो गया, natural gas, ये जो हमने examples पीछे देखे थे, these are all non-renewable sources of energy. Non-renewable का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर ये यूज़ कर लिया तो we can't use them again and again. It is not recyclable. अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के बारे में, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. पीछे तो हमने देख लिया कि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, राइट. पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है? दीज आर फ्यूल्स विच गेट रिप्लेनिश्ड एंड आर रिस्टोर्ड इन नेचर. मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको, रिन्यूएबल, मतलब वी कैन रिन्यू दैम, वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड अगेन, वी कैन रिसाइकल दैम. बट non-renewable मतलब these fuels do not get replenished in nature, we cannot use them again and again. They get replenished to maintain a flow, मतलब एक flow बन जाती है. अगर हमने renewable sources को use किया तो we can keep reusing them time and often. However, their formation requires millions of years and hence replenishment is not possible. हम सब ने देखा था fossil fuels को form करने के लिए काफ़ी million of years लग जाता है and hence they cannot be used time and often. Renewable sources of fuels की क्या example है? solar energy, wind energy etc. while as fossil fuel, as we all know, fossil fuels का जो non-renewable sources of वो है energy, इनके क्या होंगे? coal, petroleum, right.
अब यहाँ पे वी कैन सी दिस फ्लो चार्ट पिक्चर्स के साथ कि रिन्यूएबल सोर्सेज के अंडर क्या क्या आता है. इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे जियोथर्मल हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी. ये सारे क्या है, दीज ऑल एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल फ्यूल्स जो यूज़ कर सकते हैं. वाइलस नॉन रिन्यूएबल में वी ऑल नो फॉसिल फ्यूल, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं. सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड द वेरियस एग्जाम्पल ऑफ सच फ्यूल्स. नाउ कमिंग टू द वेरी मेन पॉइंट, हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया. हमने देख लिया कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स भी क्या होता है. अब पॉइंट आता है कि हम अपनी डिपेंडेंस, मतलब हम ये जो फॉसिल फ्यूल की प्रॉब्लम है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स. मतलब कि हमारी जो डिपेंडेंस है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि वी शुड यूज़ फॉसिल फ्यूल्स ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी. ये नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन हम यूज़ करें. दिस विल बेनिफिट ह्यूमन हेल्थ एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल से एयर की क्वालिटी कितनी ख़राब हो जाती है, चाहे वो बर्न किया जाए, चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में यूज़ किया जाए. This can be done by reducing the number of vehicles on the roads by sharing rides, which is nothing but carpooling. Carpooling क्या होता है कि एक ही व्हीकल में there are 2 to 3 passengers sitting in the car and they are traveling in a single car. मतलब वो अपनी अलग अलग vehicles में नहीं travel करे, they are using a single vehicle to reach to their destination. या तो दूसरा क्या है, we can use public transport, जैसे कि बस हो गई, ऑटो होगी, रिक्शाज हो गई. So this is one example of how we can control the effect of fossil fuels. We can control the effect of fossil fuels by either carpooling or using public transport. Second क्या है, we must use refined fuels in our vehicles and get servicing done on time. मतलब हमें refined fuels यूज़ करनी चाहिए. जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि पेट्रोल को ऑयल वेल से निकाला जाता है and it is refined, right? So we should मेक श्योर कि हम रिफाइंड फ्यूल्स अपनी व्हीकल्स में डाल रहे हैं एंड हम अपनी व्हीकल्स की सर्विसिंग टाइम एंड ऑफन करा रहे हैं व्हेन एवर इट इज़ ड्यू. ऑल्सो वी मस्ट ट्राई टू स्विच टू रिन्यूएबल फ्यूल्स, क्योंकि रिन्यूएबल फ्यूल्स कैन बी यूज्ड टाइम एंड ऑफन, सच एज बायोफ्यूल, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, whenever possible, as they are cleaner and cause less damage to the environment. Now why should we use renewable fuels? मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था, because they are cleaner and they cause less damage to the environment. Okay.